Uh, Hello. Hi. Uh, I've just started a YouTube channel where I go up to strangers and talk to them for like 10-15 minutes. If you, regarding actually anything, I can talk about your life. We can talk about anything. Uh, the real question is if you have some time, can I just pick your brain for 10-15 minutes and talk to you? Regarding what? I will actually come up with the topic as we go. As I ask you questions about your life and what you're into. If you want to just share a story about your life, that works too. There is no agenda, there is no specific topic that I have in my mind. The idea is that I just start a normal conversation with a stranger and see where it goes. Okay. Yeah? Then, बोलो जी. कैसे हो? How's your evening going? आप तो ये बताओ पहले. Good. Enjoying. So we already gathered that your name is Sanjay. Can you tell us a little more about your life? What do you do? I'm Sanjay. On my professional, I was marketeer. Mm-hmm. I'm working with one of the big multinational company, Mm-hmm. heading some national role. All right. How old are you? 52. Wow. I'm gonna turn 32 in like 4 days. Good. It's low-key scary. Do you have any tips for me as I get old? Go into mid-30s? Nothing. Yeah. Enjoy yourself. Enjoy the time. Enjoy the moment. Mm-hmm. Spend more time on your health because mentally and physical health is very important. Because as you get older, not by biological age, by psychological age, then the stress level and other things comes down. Mm. If you start preparing that point of a time, it will hit you hard. If you proactively work something on your especially mental health and physical health, because are both together. If somebody says कि ये अलग होती है वो अलग होती है, ऐसा नहीं होता. सही बात है. दोनों इकट्ठी ही होती है. सही बात है. Because at the end you are a human being, you are one body, and mind and body work together. So you have to work really hard to make this balance. This is very, very important. And your habit, behaviors, your thought process, ये आपको बहुत काम आएगा. ये तो आई थिंक 30 क्रॉस कर रहा था तभी ही थोड़ा सा एक जर्नी में घुस गया था मैं, जहाँ पे थोड़ी मेरी वाइसेस हैं, जैसे सिगरेट विगरेट पीता हूँ, दारू वारू पीता हूँ, वो सब थोड़ा मैं कंट्रोल में लेके आ गया. अभी 6-7 महीने हो गए मैंने सिगरेट नहीं मारी. और बहुत सारे डाइटरी चॉइसेस भी ऐसे एक्टिवली कंट्रोल कर रहा हूँ. तो समझ गया हूँ कि अभी मतलब बॉडी इतना साथ नहीं देती है 30 के बाद, थोड़ा हमें भी संभालना पड़ता है. तो अगर आपकी बॉडी अभी 30 में जवाब दे रही है तो आप 50 में क्या होगा. मैंने मस्ती भी और अब्यूज़ भी इतना किया ना बॉडी को, तो अभी समझ गया हूँ थोड़ा. आई होप समझ गया हूँ. Yes. Tell me about your childhood. How where were you brought up? I born and brought up in Delhi. Yeah. Work around almost except east part of a country. Otherwise, I work all over India. अच्छा. I resides almost because I'm sales and marketing. All Bangalore, Chennai, Hyderabad, Chandigarh, all touch all states. और अभी नवी मुंबई में हो, सेटल्ड हो? Yes, I choose to live in Navi Mumbai. After residing in all the states in India, most of the states that you've Most of covered. the states, even Bandra, अंधेरी वगैरह रहने के बावजूद भी I choose to stay. थोड़ा in Navi चिल है ना यहाँ पे? Chill से ज़्यादा peace है. पीस है ना? Because after some time you start realizing chill और peace में difference होता है. Chill तो दारू में भी होता है और discotheque में भी chill होता है. सही बात है. Peace कुछ अलग चीज़ होती है, वो which is far here is far better. ये चिल और पीस का डिस्टिंक्शन अच्छा लगा मुझे, कभी सोचा नहीं था. मेरे लिए सिनोनिम ही थे. हाँ, difference तो है. जी. घर पे कौन कौन है? I have wife. My both son and daughter are
studied in engineering college. कैसे हैं बच्चे? Do they fight back? Do they respect you? के मतलब ऐसे है They कि respect, they are friend to me. They are friends? They enjoying their choices. They work hard for their future. They have their own life, own choices. But the best part is whatever they choose, they own it. That's I like it. Otherwise, the new generation used to choose but not own. Can you expand a little? Choose but not own. के मतलब एक चीज पकड़ी फिर 6 महीने बाद बदल दी. choose, yes, it is multiple facts. One choose किया, फिर उस choice को बहुत जल्दी बदल दिया. सेकंड, जब चूज किया और उसमें सक्सेस नहीं की मिली तो किसी पे ब्लेम कर दिया. When you choose, you have to own completely, either person or your choices or whatever it is. आपकी लाइफ में ऐसा क्या था इंटरेस्ट, मतलब की मोमेंट जो आपको लगता है ये जब मेरे लिए था, वेयर आई हैड टू फेलियर भी आया या कुछ भी आया, बट आई ओन्ड अप टू इट एंड आई स्टक विद इट, एंड नाउ व्हेन यू लुक बैक ऑन इट यू आर लाइक चलो आई एम ग्लैड आई कुड स्टैंड माई ग्राउंड. एंड ऐसे कोई थे मोमेंट्स की सीरियस? Many moments. एक दो बताओ जरा मस्त वाले. Many moments. The college time when I choose, I'm science student. I was a science student in 12th, but suddenly I choose to go to commerce. I think that point in time you have to follow your heart. वो एक मुझे लगता है कि मेरा मिस्टेक था कि मुझे हार्ट मतलब साइंस पे टिके रहना चाहिए था. बिकॉज दैट पॉइंट ऑफ टाइम कॉमर्स आ रहा था, फाइनेंस आ रहा था, तो एक वो हो जाता है. पर उस टाइम पे थोड़ी चॉइसेस भी आज के टाइम में बहुत कम है. कॉलेजेस वो से सॉफ्ट कम है, उस टाइम काफ़ी कम होते थे. तो दैट्स वन, वो लगता है कि. सेकंड, मैंने अपनी रीडिंग हैबिट को थोड़ा कम कर दिया. वो मेरे को लगता है वन ऑफ माई बिग मिस्टेक. व्हेन द स्ट्रेस कम्स इन, वर्क प्रेशर कम्स इन, तो आपकी जो रीडिंग हैबिट, स्पेशली बुक रीडिंग हैबिट, वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी जिसको मैंने बहुत कम कर दिया. आई थिंक दैट वाज नॉट द करेक्ट डिसीजन. थर्ड, द लर्निंग, मतलब लर्निंग पीपल से यूट्यूब लर्निंग होता है, पॉडकास्ट लर्निंग होता है, या दो लोग बात करते वो लर्निंग होता है. आई थिंक दैट्स बुलशिट. लर्निंग वो नहीं था. लर्निंग का एक स्ट्रक्चर होता है. अगर आपको रियली लर्न करना है, यू हैव टू फॉलो दैट स्ट्रक्चर. वो मैं काफ़ी करता था, बट लास्ट 5-10 ईयर्स वो छोड़ दिया. तो वो कंटिन्यू रखना चाहिए था. यस, आई कम बैक. ये जो पॉडकास्ट वाला लर्निंग है, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, मेरा तो एक इंटेंशन ये पॉडकास्ट चालू करने का यही है कि लोगों से मिलूं, बात करूं. ज़रूरी नहीं है हर इंसान से कुछ सीखूं, लेकिन ओवरऑल अगर समझो 100 लोगों से मैंने बात की तो कुछ यूनिफाइंग पॉइंट्स तो होंगे जो शायद सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में घुस जाएं. और लर्निंग तो मुझे लगता है पर्सनली, मैं आपको एग्जैक्ट आपके अगेंस्ट नहीं जाना चाहता हूँ, पर मैं मानता हूँ लर्निंग तो हर जगह होती है. आप वो आपके ऊपर है, आप कहाँ से, अगर 4 साल के बच्चे से आप बात करते करते भी लर्न कर सकते हो, यूट्यूब पे भी कर सकते हो. वो नहीं था. आपका स्ट्रक्चर्ड लर्निंग तो मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हो. ये नहीं होता कि मैं आपने मेरे को कुछ कहा, जी मैंने सुना, जी, ये भी एक लर्निंग है. आई वुड लाइक टू कर रहा था, वो भी एक लर्निंग है. लर्निंग वो नहीं होती एक्चुअली. अगर आप किसी रिलीजन टेक्स्ट से पढ़ो, साइकोलॉजिस्ट को रीड आउट करो या फिलोसफर्स को, दैट इज़ नॉट लर्निंग. दैट इज कॉल्ड इम्पल्स नॉलेज. वो एक टेम्पररी फिनोमिना है. कोई भी नॉलेज है उसका एक प्रोसेस होता है. आपके माइंड को, यू हैव टू बी सीकर फर्स्ट, देन यू हैव टू ऑब्जर्व द नॉलेज, देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट, देन यू हैव टू उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना. और जब तक वो तुम्हारी लाइफ में ऐड वैल्यू नहीं कर पाती, तो अदरवाइज इट इज़ अ स्मॉल न्यूज़पेपर न्यूज़ और उसका कोई फ़ायदा नहीं है. लोग हाँ यूट्यूब वीडियोज़ उसे बनाने के लिए बहुत यूज़ करते हैं, बट इफ़ यू वांट टू रियली लर्न, एंड इफ़ यू सी, यू वांट टू सी द लर्नर्स, और यू वांट टू सी द पीपल हु लर्न एंड चेंज द ट्रेजेक्टरी ऑफ ह्यूमन बीइंग, लुक आउट दीज पीपल. उन्होंने लर्निंग पे, विवेकानंदा,
टेक अब्राहम लिंकन, रीड बेंजामिन फ्रैंकलिन, रीड मैनी पीपल। उन्होंने लर्निंग को कैसे यूज़ किया अपने आप को। और कोई भी चीज़, अगर किसी चीज़ में अगर मैं तुमसे पूछूं, यू आर यंग गाय, वेरी सिंपल क्वेश्चन, हम इतनी स्ट्रीम्स पढ़ते हैं, हर स्ट्रीम का जो एंड होता है वो पीएचडी क्यों होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएचडी? आप डॉक्टर भी अल्टीमेट पीएचडी बनता है जी, हिस्ट्री वाला भी पीएचडी बनता है जी। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? पीएचडी का फुल फॉर्म, गुड क्वेश्चन, नहीं आपको पता मुझे। लर्निंग तब आपको लर्निंग का मीनिंग पता चल जाएगा कि व्हाई हर चीज का एंड पीएचडी पे क्यों खत्म होता है। उसके पीछे एक रीजन है, उसका रीजन लर्निंग है। प्रॉपर इन डेप्थ डाइव मार के। फिलॉसफी ऑफ डॉक्टरेट कहते हैं ना। फिलॉसफी क्या होता है? जो भी नॉलेज किसी की लाइफ में मीनिंग को हेल्प करती है, दैट इज कॉल्ड फिलॉसफी। अगर आप डॉक्टरेट की नॉलेज ले रहे हो किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आपकी लाइफ के मीनिंग में उसका एडिशन नहीं होता, डॉक्टरेट नहीं बनते हो, तो वो नीचे लेवल की नॉलेज है। तो आपका नॉलेज कौन सा बना है? आपको बैचलर बनना है, एमए बनना है, पीएचडी होल्डर, अगर पीएचडी होल्डर बनना है तो देन तो प्रोसेस है। तो कोई बुरी बात नहीं है ना, सरफेस लेवल की भी नॉलेज अगर बहुत चीज़ों में ले ली, थोड़ी थोड़ी, वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जैसे कहते हैं, थोड़ी थोड़ी नॉलेज हर चीज़ के बारे में, आप एवरेज ही रहोगे। एवरेज ही रहोगे। पर चॉइस है, चॉइस है, मतलब आपको एक चीज़ में मास्टरी नहीं करनी है, लेकिन आपको थोड़ा खाना बनाना सीखना है, थोड़ी सी ड्राइविंग सीखनी है, थोड़ा सा पेंट कर लेते हो। सिंपल, दैट्स व्हाट आई सेड। हर चीज़ में मास्टरी की अगर भी आपको चॉइस है तो आपको चॉइस करने का हक है। अगर आप एवरेज चॉइस करोगे तो एवरेज रहोगे। बट एक आई थिंक दैट कोट बाय विवेकानंद और समबॉडी, फॉरगेट हिज नेम, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑलराइट, प्लीज। रविंद्रनाथ टैगोर कहता था कि मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, पर किसी चीज का सब कुछ पता होना चाहिए। नहीं समझे? नहीं समझा मैं। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग, बट फॉर समथिंग आई नो एवरीथिंग। बट फॉर समथिंग आई नो एवरीथिंग, मैं समझा। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग। मुझे सबके बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए, पर एक चीज ऐसी होगी जिसके बारे में मुझे सब कुछ पता होगा। हाँ, तभी मैं ह्यूमन बीइंग हूँगा, अदरवाइज आई एम नॉट अ ह्यूमन बीइंग। समझा मैं। अच्छी बात है, अच्छा ख्याल है, आई लाइक इट। कि अगर आप हो तो आपकी आइडेंटिटी उसी से बनती है जब आपको एक चीज के बारे में सब कुछ पता होता है। अदरवाइज आपकी आइडेंटिटी डिल्यूजन में रहेगी। वो भी आपकी चॉइस है, वो भी आपकी चॉइस। तो दैट यू ओन इट। इसमें कोई खराबी थोड़ी, एवरेज होने में खराबी थोड़ी है। आपके पास, आपको मिली है ऐसी कोई चीज आपके लाइफ में जिसके बारे में सब कुछ तो नहीं पर बहुत कुछ पता चल गया हो? हाँ। एक अच्छी मास्टरी आई हो? हाँ, बहुत चीज़ों में पता चल गया कि कोई चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये भी एक है। जैसे कि जैसे मनी के कंसेप्ट को मेरे को लगता है मैंने बहुत डिफरेंटली चॉइस किया। एवरीबॉडी रन्स फॉर मनी, बट आई अंडरस्टैंड कि मनी इज कागज का टुकड़ा है, उसके ऊपर जो स्टैम्प होती है उसकी ताकत होती है। और फॉर 100 रुपीज़ एक आदमी के लिए बहुत है और एक आदमी के लिए कुछ नहीं है जी। वो उसने मेरे को बहुत पीसफुल बना दिया। देखो, इतना बिजी होने के बावजूद भी शाम टाइम मिला तो मैं आके अपना बैठ गया। अगर मुझे उस कागज़ के टुकड़े की औकात नहीं पता होती तो ये कभी नहीं करता। चलो यार, ICICI डायरेक्ट के अंदर शेयरों पे टाइम लगा लिया जाए। आज किसका बेका, किसका नहीं बेका, हमास में कौन मरा, क्या हुआ, किसने कह दिया, IIGPT का CEO वापिस आया नहीं आया, उस पर टाइम लगाया जा सकता है। बट वो जनरल नॉलेज ही है, जनरल नॉलेज फिर जनरल ही है। तो वो अब समझ आ गया कि भाई उसको छोड़ो। ये पार्क में जब घास पे बैठेंगे और अपनी मस्ती के 3 गाने सुनेंगे, वो जो है वो करोड़ों के है। एकदम सही बात बोली, बहुत अच्छी बात लगी मुझे। ये पैसे का जो आपने बोला, आपका अंडरस्टैंडिंग बदला है, थोड़ा उस पर और एक्सपांड करो, थोड़ा और अब बताओ कि आप हाउ यू लुक एट मनी एंड हाउ इट इज़ प्रोबेबली डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल जो पैसों को कुछ ज़्यादा ही वैल्यू डाल देते हैं। मनी इज गुड सर्वेंट बट वेरी बैड मास्टर।
मेरी जेब तक रहनी चाहिए, मेरे सर पे नहीं आनी चाहिए। सिंपल एज इट इज। अच्छी लगी मुझे बात, बहुत सही बात है। संजय जी, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि मैं पहले ही किसी इंसान से बात करूंगा और इतना अच्छा जाएगा ये कॉन्वर्सेशन। क्या बोलता है कुणाल, आई एम तो लविंग इट यार। तुम्हें इसी में एक चीज समझाता हूँ, शायद समझ आएगी। आपने कभी विष्णु की फोटोग्राफ देखा? जो कैलेंडर आर्ट में ब्रह्मा विष्णु, भगवान विष्णु है। आजकल इंडिया में जो हिंदुज्म का बहुत सनातन कुछ बहुत लोग होते हैं, बट जी लोग बोलते बहुत है पर समझते नहीं है। कभी उसका फोटोग्राफ देखा है कभी ध्यान से? कोई भी देखा होगा ध्यान से, शायद नहीं। ऑब्जर्व किया होगा विष्णु, यहाँ पे आप तिरुपति बालाजी का फोटो देखते हो विष्णु जी का, जी जी। तो ऊपर बालाजी है, या आप स्लीपिंग विष्णु देखते होंगे। दीज आर टू फोटोग्राफ्स व्हिच इज वेरी फेमस। तो अगर स्लीपिंग विष्णु वाला फोटोग्राफ कभी भी देखा हो तो वेयर द लक्ष्मी रेजाइड्स, कभी ध्यान दिया है? एट द फुट। एट द फुट, या करेक्ट। आप कहोगे विष्णु इज द जनरेटर और कंट्रोलर ऑफ द लाइफ, सब कुछ है। वो पिक्चर्स हम देखते हैं, पूछते हैं, हो जाते हैं, अरे वो कुछ कह रहा है, वो सुन तो लो। वो यही कह रहा है कि यस वो मेरी वाइफ जरूर है, पर मेरे फुट पे। फुट का मतलब अनादर नहीं है, डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट ही चूज कि भाई थोड़ा डिस्टेंस। अगर तिरुपति बालाजी की कभी फोटो देखो तो सरस्वती रेजाइड्स एट हार्ट। अगर आप ये नेरुल में जो बालाजी का टेम्पल है कभी जाओ, उसके 2 स्टैचूज टंगे रहते हैं हाथ पे, तो वन इज सरस्वती। यू वांट टू से समथिंग, लिसन ना। तो ये थोड़ी माथा टेक के आ रहे वो कुछ कह रहा है, सुन तो लो। जिस भगवान को पूजते हैं, नारे लगाते हैं, अरे वो कुछ कह रहा है, वो तो सुन लो। अगर वो इम्प्लीमेंट कर लो तो आपको मीनिंग पता है। लक्ष्मी, वैसे लक्ष्मी इज नेवर गॉडेस ऑफ मनी एज पर स्क्रिप्चर्स। ये पॉलिटिकल और पंडितों की है। एज पर स्क्रिप्चर लक्ष्मी इज नॉट द गॉडेस ऑफ मनी। लक्ष्मी वेल्थ हुआ होगा ना, एंड वेल्थ का तो बहुत ही अलग ही डेफिनेशन। हेल्थ को भी वेल्थ कहते हैं, मेंटल को भी वेल्थ कहते हैं, बच्चे हैं, घास को भी कहते हैं, सबको वेल्थ कहते हैं। पर प्रिडोमिनेटली हम वेल्थ को पैसा गिन लेते हैं, क्योंकि आज की लाइफ में पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, तो इसलिए बेचारी वो भी उसी पे लग गई। क्रिप्टो भी लक्ष्मी हो गई आजकल। करेक्ट। वो तो देखो नेशनल मनी है, कितनी पावरफुल बन जाती है। अच्छा है, आई रियली लाइक योर आइडिया विद मनी ऑल्सो। पैंडर नहीं कर रहा हूँ सच्ची में, मतलब मैं भी पैसे को टूल की तरह ही देखता हूँ कि एक जरिया है, आपके काम आएगा। पर यही है कि सर पे चढ़ गया तो फिर आपको ले डूबेगा, उससे बच के रहना है। यस। Did you marry out of love or was it an arranged marriage? यार मेरी मैरिज थी। रीजन वेरी सिंपल, व्हेन आई गेट मैरिड माई, बिकॉज आई बिलोंग्स टू मिडिल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, बट देर वेरी क्लास फैमिली। तो माई फादर इज वेरी क्लियर ऑन दिस कि जब भी तुम किसी लड़की को देखने जाओगे, उस टाइम थोड़ा सा ऐसे ही चलता था ना, तो तुम्हारे पास कोई राइट नहीं होगा उसको हाँ या ना कहने का। अच्छा। अगर तुम उसके पास चले गए हो, राइट उसके पास रिजाइड करेगा, तुम्हारे पास नहीं है। अगर तुमको नहीं चाहिए तो आप पहले दूर से देखो, उसके प्रोफाइल चेक करो, बट तुम्हारे पास राइट नहीं होगा। फर्स्ट राइट उसके पास होगा। उसने हाँ कर दिया तो मतलब हाँ ही है, फिर हाँ है, तुमको अच्छा। अपना नहीं कर सकते कुछ आपने मतलब मैं समझता हूँ आपके टाइम पे ज्यादा क्यों क्या नहीं कर सकते थे मम्मी क्यों पापा का के नहीं, साथ? नहीं। इसके पीछे उनका एक कंसेप्ट था, एक लॉजिक था। ही सेड हम कहते तो हैं कि लेडीज को एम्पावर करना है, लेडीज को रिस्पेक्ट करना है, जब उनकी चॉइस के बारे में बात आती है तो हम इतने पीछे क्यों हो जाते हैं? ये शादी में तो लेकिन दोनों की चॉइस आ जाती है। एब्सोल्युटली। उन्होंने मुझे ये थोड़ी कहा कि तू ना नहीं कर सकता, अच्छा। पर उन्होंने ये कहा कि जब तू देखने चला गया फिर चॉइस उसके पास है, तू पहले मना कर सकता है, अच्छा, पर जाके नहीं। वो कोई डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा वो लेडी के लिए डिसरिस्पेक्ट होगा। अच्छा। जब तक मैं जिंदा हूँ नहीं करना। तेरे पास डिसरिस्पेक्ट करने की जगह नहीं है,
तू बात कर, तू फोन में बात कर, तुम्हें प्रोफाइल चेक करनी है, बट व्हेन यू कम टुगेदर विद द फैमिलीज एंड टुगेदर, देन शी हैज ओनली डिसाइड, क्योंकि तुम्हें ये राइट देना ही होगा। काफी इंटरेस्टिंग है। अब तुम उसको गलत कह सकते हो, वो कह सकते हो, बट दैट पॉइंट ऑफ शायद आज जब मेरे बच्चों की होगी तो उनका कहना होगा ठीक है आपस में बात कर लो, बट दैट पॉइंट वो टाइम ये भी रियलिटी थी कि वुमेन्स आर नॉट सो एम्पावर्ड। तो ही वांट टू सेंड अ मैसेज टू ऑल अराउंड कि प्लीज गिव स्पेशलिटी और दिस, क्योंकि ही सेड कि मेरी भी डॉटर है ना, एज यू वांट अ रिस्पेक्ट एज शी वांट्स रिस्पेक्ट। बात क्यों करते हो, रिस्पेक्ट दो ना, बातें क्यों, बिकॉज माई फादर इज ऑलवेज, बातें करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ बकवास होती है। तुम पॉलिटिशियन हो क्या, शो एग्जाम्पल्स। एक उनका बहुत प्यारा कोट है, कहते हैं हमारे पॉलिटिशियन की सबसे घटिया चीज़ यही है, वो अपने आप को लीडर कहते हैं, पर लीडर की सबसे बड़ी चीज़ होती है यू सेट बाय एग्जाम्पल्स, जो हमारे लीडर कभी करते ही नहीं है। एग्जाम्पल तो सारे पुट्ठे हैं, तो फिर रिजल्ट भी पुट्ठे ही आएंगे। तो कहते हैं आपको एग्जाम्पल सेट करने होते हैं, व्हेन यू सेट एन एग्जाम्पल पीपल विल फॉलो। थोड़े पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, मैं ना काफ़ी डरता हूँ कि मेरा चैनल चालू होने के पहले ही बंद ना हो जाए। पर तो फिर ये दिस फर्स्ट गर्ल दैट यू सॉ यू मैरिड, या एंड डिड यू मैनेज टू फॉल इन लव? प्यार हुआ कि was it like a compromise? No, it's no compromise. आप ये भी कह सकते हो टाइम के साथ जो लव की डेफिनेशन है वो बहुत डिफरेंट है। आप लव को क्या गिनते हो, समझते हो? Some people say love is friendship. Some people say love is arranged. As per medical sciences, it's a romantic love or physical love. आप किस love को कहते हो, क्या उसको गिनते हो? It all depends upon the two person. आपके लिए क्या है? मेरे लिए अगर आप प्यार को अभी डिफाइन करो तो आप कैसे करोगे डिफाइन? मेरे लिए कि वो दो आदमी, चाहे वो कोई भी हो, मेल फीमेल, मेल मेल फीमेल, जो भी दो आदमी, कोई भी हो, लव कोई शादी के उसका तरीका वो नहीं जी। ये शादी भी एक रिचुअल है और एक टोटम है और उसके अलावा कुछ नहीं है। कोई भी दो व्यक्ति है, अगर उनमें इफ दे साइलेंट बट इवन दे अंडरस्टैंड ईच अदर, और वो एक दूसरे के लिए रुक सकते हैं, एक दूसरे के लिए चल सकते हैं, एक दूसरे के लिए भूखे रह सकते हैं, एक दूसरे के लिए खाना पका सकते हैं, तो प्यार ही है। पेशेंस, कॉम्प्रोमाइज, नॉट कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज इज एब्सोल्युटली नेगेटिव वर्ड। कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस, वो भी नेगेटिव इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड। व्हाई शुड टू पीपल सैक्रिफाइस फॉर ईच अदर? यू दो पीपल क्यों सैक्रिफाइस करते हैं? कभी नहीं करना चाहिए। प्यार में तो होता ही है सैक्रिफाइस। नेगेटिव, एब्सोल्युटली रॉन्ग। सैक्रिफाइस का क्या मतलब? पॉजिटिव सैक्रिफाइस भी हो सकता है ना। छोड़ दिया, अरे नहीं यार, बोलने की जरूरत नहीं है, छोड़ा पर छोड़ा बिना बताए। अभी मैं कह रहा हूँ ना कि अगर दोनों को बिना बताए एक दूसरे को समझ, दो दोस्त अगर साथ बैठे हैं और बात भी नहीं कर रहे, फिर भी एक दूसरे की जर्नी एंजॉय, पीस फील कर रहे, तो वो दोस्त है, उन पे प्यार है। ठीक है। अगर उसने छोड़ दिया, कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, इट मीन्स अदर पर्सन डोंट अंडरस्टैंड दिस पर्सन। अगर वो चीज छोड़ रहा है तो उसको पता होना चाहिए वो छोड़ रहा है। ऐसा नहीं सेक्रीफाइस होता कि इट्स साइलेंट, भाई मैंने तेरे लिए छोड़ दिया, उसको पता नहीं चला। प्यार में था, तूने छोड़ा, यस आई नो, आई रिस्पेक्ट यू, इट इज नॉट हिडन, इट इज नॉट साइलेंट। उसको पता रहता है यार इसने मेरे लिए कि हाँ, समटाइम यू हैव टू मेक अ चॉइसेस, बट ही और शी नोज अदर पर्सन की ही मेक्स और शी मेक्स अ चॉइस एंड दैट मेक्स अ रिस्पेक्ट। क्योंकि किसी चीज में सबसे बड़ी चीज होती है, वो होती है रिस्पेक्ट। एक अगर तुम्हारे में वो नहीं है तो प्यार तो क्या बहुत दूर का वर्ड है। सही बात है, रिस्पेक्ट तो बहुत जरूरी है। तो वो यही रिस्पेक्ट तो यही होता है कि अगर उसने छोड़ दिया, अगर मैंने बगैर बताए छोड़ दिया, तो वो भी प्यार नहीं हो ना।
प्यार तो वही है ना, हाँ तूने छोड़ा तो मुझे पता है और मैं तेरी इस चीज के लिए रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर तूने छोड़ दिया और मुझे पता ही नहीं चला, फिर प्यार कैसे हो गया? ट्रांजैक्शन थोड़ी हो रही है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग है। और प्यार मुझे नहीं लगता कि वो एक पल, एक घंटे, एक साल में होता है। वो नहीं होता है ऐसे। हर चीज़ का एक नरिशिंग का एक टाइम, नेचर, अब बैठे हो नेचर में देखो, हर चीज़ नेचर, हर चीज़ जो बनाती है उसका एक टाइम है, उसका एक तरीका है, एक प्रोसेस है। इन माई लीडरशिप टॉक आई यूज टू से, कभी देखो कंपनीज को, देखो बड़ी बड़ी, टेक एग्जाम्पल, विच आर द बिग कंपनीज? हिंदुस्तान लीवर, TCS, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, सारी टेक जायंट्स कैसे काम करती है? अपनी एम से चलती है क्या? नहीं, वो अपने एक प्रोसेस से चलती है। उन्होंने ये चीज नेचर से खींची है। नेचर का एक प्रोसेस है, एक पौधा छोटा होता है, उसमें खाद आता है, सनलाइट आती है, उसका एक तरीके है, फूल निकलता है, हर चीज का मैच्योर होता है। कच्चे आम से कभी मैंगो शेक नहीं बनता, खट्टा आम से अचार ही बनता है। तो अगर मैंगो शेक पीना है तो आपको अच्छे आम को पकना होगा, रुकना होगा, तो रुकना होगा। बस यही फर्क है कि जब अब थोड़ा ज्ञान है, बट एक छोटी सी चीज़ है। सम दे बुद्धा को किसी ने कहा कि आप महात्मा कैसे बन जाए, तो उसने कहा तुम बन जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने कोई ऐसा कोई बड़ी चीज़ थोड़ी कर दी है। वो क्या चीज़? कहता मैं 3 चीज़ें सीखी है, तू सीख ले, तू बन जा। सेड आफ्टर दिस निर्वाणा नाउ आई कैन वेट। मैं कोई भी काम करता हूँ, इंतज़ार करता हूँ, सब्र है मेरे में, ये हो जाएगा। सेकंड कहता है ही कैन, आई कैन रन। अब मैं किसी काम के लिए काम करता रहूँगा, काम करूँगा, ये मैंने सीखा। थर्ड कि अब मैं भूखा रह सकता हूँ। भूखा ना, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट हंगर ऑफ फूड, ही इज टॉकिंग अबाउट हंगर ऑफ योर मेंटल हंगर। मुझे इतनी भूख नहीं है कि अभी चाहिए, इसी टाइम चाहिए, नहीं मिलेगा तो तेरे को मार दूंगा। मैच्योर्ड भूख है, थोड़ी मैच्योर्ड भूख है, भूख ही नहीं है। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो या तो मैं जीतूंगा या सीखूंगा। हार तो होती ही नहीं है। कौन कहता हार होती? या मैं जीत जाऊंगा या मैं सीख जाऊंगा। बहुत सही बात है। गौतम बुद्ध का तो मैं भी काफी बड़ा फैन बॉय हूँ। काफी चीजें हैं उनसे सीखने के लिए। आप मेडिटेट करते हो? हाँ, दोबारा शुरू किया है आजकल, बीच में छूट गया था जी। कोई स्पेसिफिक टाइप मेडिटेशन का करते हो? मेडिटेशन कोई, देखिए मेडिटेशन तो 1000 टाइप होते हैं ना, 1000 टाइप्स होते हैं। कोई माला जपता है, कोई राम राम कहता है, कोई खाली अपनी सांस पे ध्यान देता है। मेडिटेशन के वो कई रास्ते हैं। मैं तो साइलेंस, बस सांस पे ध्यान देनी है और calm down my brain, that's मेरा भी वही है, मैं भी वही ट्राई करता हूँ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपका और टाइम लेंगे नहीं, आप चिल करो इस गार्डन में। और क्या प्लान है आपका आज रात का फिर, अभी इसके बाद? I'm going back, have food, फिर देखेंगे कोई बुक एक शुरू की हुई है। कौन सी बुक शुरू की है? थोड़ी सी हिस्टोरिकल है, दिल्ली के बारे में, शहजानाबाद। अब्दुल साफ़ी एक राइटर है, हाँ साफ़ी, एक PhD होल्डर है। दिल्ली के जो शहजानाबाद है उसके बारे में है कि वो कैसे बना। तो थोड़ा वो पढ़ने की कोशिश है कि दिल्ली बड़ा ज़बरदस्त शहर है इस दुनिया का, ऑफ कोर्स, तो उसको बारे में है। ठीक है, गुड लक विद योर बुक, हैव अ ग्रेट इवनिंग। यस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम है, बहुत बहुत शुक्रिया, चलो, थैंक यू सो मच। चलो कट।